Record. Okay, so we are doing this bank session where the funda is that you go into the nuances of sessions. You get into the depth of your content. It's not about playing on the surface level, it's getting deeper and deeper into your content. Showing how you're different, what you can bring to the table, how you can benefit your clients, how you can solve their problem, and how you are the go-to expert for the things that you offer, right? So today what I'm going to share a very interesting funda of content creation. And this funda is, you can say, inspired from this book called Steal Like an Artist by Austin Kleon. So he says that there is nothing called as original. Originality is undetected plagiarism, right? So this is what I want to focus. And when we are talking about, content bank, obviously we'll be creating it today. I want to share there are three things that you need to keep in mind, which is copy. Second is you need to curate, and third is you need to create. Now, what do I mean by copy, curate, and create? Copy means, let's suppose there is an influencer who's doing very, very well. She has got hundreds and thousands of comments on a post. So instead of reinventing the wheel, what I'm going to do is I'm going to take that post, I'm going to dissect what are the best elements, how was the hook, what was the structure like, how was the CTA, and I am going to redo it in my own style. I'm not saying I have to do it like ditto, copy. I will add my angle. Obviously, I'll take some fundas from her and from other people. And then I will present my unique experience in my unique style, in my unique voice. Right? That is what I mean by copy. So yeah, this is good, but then how do I find out what is my unique style? Because you will find it eventually. It takes some time to find your unique. जैसे अब मैं 2-2.5 साल से ऊपर हो गया लिखते. Now after a while I understand how I talk, I understand how I write. It takes time. I mean, ऐसा नहीं होता कि you write the first post and you know, okay, this is my style. It is a process, and you have to first start with copying. When I mean copying, it does not literally mean copying. It means taking inspiration from someone and then, recreating it in your own style. The benefits are immense because you don't have to reinvent the wheel. You don't have to do all the due diligence, all that research, all that hard work that somebody has already done for you. If somebody has got 1,000 comments or 1,000 likes on his post, the concept is proven that people want that concept. That's why so many people are engaging. You don't have to reinvent the wheel. You have to just model that person. Second thing is curation. Now, what is curation? Curation is very simple. You take curate. Curation is very, what did you say? Very simple. It's very simple. It means that, you take inspiration from not one person. When we were copying, we were taking from somebody's one person. We went to his profile, we saw something interesting. We took that piece of content and we recreated it in our own style. You'd be astonished to know this, but 80 to 85, 90% of YouTubers who are in the top 1%, those people are they are applying these concepts. And I've learned this from one of the content creators, where he said that he's not reinventing the wheel. He only goes to the top creators, he sees what's working for them, and then he recreates it using his style, his own experience. And the second thing is curation. Now, curation is, you don't go to one person, you go to 100 people or maybe 10 people. Okay, you take one idea from here, one idea from here, one idea from there, one idea from and you acknowledge the people that you have taken ideas from. If you're directly quoting them as it is, for instance, if you're taking a quote or if you're taking a direct line, you obviously need to acknowledge them. But if you are, taking all these things, right, and what you're doing is you're adding your element, meaning you went to 10 or 50 people's profiles. You saw these are the interesting patterns I'm watching. And now I'll add, 4-5 from my own experience. And then you create this amazing, whatever you want to create. It can be a blog, it can be a post, it can be a book, it can be anything. If you see what is a book, book is a curation, because you have not written the entire book. You have taken inspiration from 100 or 1,000 different sources who are all legit or who are all
leaders in their own way, right? So you can also curate, and then is the final step, which is create. So 60% is where you need to copy. 60% of the time, 60 to 70% of the times you should copy in the initial time. Hmm. Then 20% should, or 20 or 30% should go on, curation. And finally, 10% only are the things that you should create, because initially creating things from scratch is not easy. And that too, if you are wanting to be seen as a thought leader, right? So if you apply this funda, your life would be so simple. There would be so much less headaches, and the content creation will become so simple, right? तो अभी हम कंटेंट का कंटेंट बैंक कैसे बनाना है वो सीखेंगे. सी, मैं एक प्रॉम्प्ट के थ्रू भी आपको बताऊंगी, एंड आई विल टेल यू अनदर मेथड आल्सो. सी, मैं क्या करती हूँ, व्हाट आई हैव डन इन दिस कंटेंट बैंक, इफ यू सी, मेरा फॉर एग्जांपल थीम है पर्सनल ब्रांडिंग, दिस इज माय टॉपिक फॉर एग्जांपल. तो मैंने उसके 10 सब टॉपिक्स मैंने ढूंढे, राइट? विजुअल ब्रांडिंग, कंटेंट स्ट्रेटजीज, ऐसे ऐसे मैंने 10 कुछ सब टॉपिक्स ढूंढे, राइट? एफएक्यू जो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछे, यू नो, जो जो मेरे खुद के, आई कैन इवन ऐड माय स्टोरीज, आई कैन डू सो मेनी थिंग्स हियर, राइट? सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज, जो भी सिमिलर टॉपिक्स हैं आप उनको एक बकेट में, यू कैन पुट इट इन लाइक वन बकेट. सो दैट मीन्स यू कैन क्रिएट सीरीज. आप सीरीज बना सकते हो उसमें, मान लो 10 टॉपिक्स एक उस पे हैं, एक थीम पे, देन यू कैन क्रिएट अ सीरीज. लाइक इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है सीरीज बनाने का. सो ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती हैं. सो हम एआई से भी ढूंढेंगे आइडियाज, बट मोर देन दैट व्हाट आई वांट इज कि आप टॉप क्रिएटर्स की प्रोफाइल्स पे जाओ, थीम्स देखो, और वहां से आप ये सारे जो कंटेंट पीसेस हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जिन चीजों पे आप कंटेंट बनाओगी, आप वहां से वो सारी टॉपिक्स यहाँ पर उठा के डालो. नॉट जस्ट फ्रॉम एआई, ऑब्वियसली यू कैन टेक आइडियाज फ्रॉम एआई, एआई इज अ ग्रेट सोर्स. तो मैं एक प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, राइट? एंड what I'll do is I'm going to copy it. Why I'm not able to? Control that. 1 second. तो फॉर एग्जाम्पल, अब हम एआई से पूछते हैं कौन से 10 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हो सकते हैं जिसपे हम ये सारी चीजें बना सकते हैं. इसको थोड़ा सा हम वो करेंगे. I don't know why is my computer active. सो मैं क्या करूंगी, मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है अपने कोचेस के लिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पर इसमें बस कुछ कुछ एडिटिंग करूंगी. जैसे हियर इज आई हैव रिटन दिस फॉर अ personal finance expert, and here I will write it for a communication and public speaking expert. Public speaking expert, right? For working professionals, obviously. So women, we can add working women. women, हाँ, working women कर देते हैं इसको. Working women professional. Women, share top 10 subtopics on communication and personal branding. Sorry, public speaking, दोनों पे कर देते हैं. Please go deep into these topics and be specific and relevant in your subtopics. ठीक है? तो हमने ये एक prompt दे दिया इसे, and now let's see. तो इसने हमें ये 10 टॉपिक्स दे दिए कि असर्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एक्चुअली वर्क स्पेस में. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. माय हस्बैंड कीप्स ऑन सेइंग दैट यू शुड क्रिएट अ वीडियो ऑन assertive communication, because he was telling me about one of his managers. She was a lady, and her bosses used to shove her with lots and lots of work, and she never dared to say anything about it. She would keep
She would keep taking work from her juniors, from her seniors, and she would keep doing it all day long. So he used to say he had another friend who was very assertive, who would set boundaries and who would tell, I can only do this much. I can only stay till 7. And she, Hmm. on the other hand, did not know that. And he said that, I feel that assertive communication in the workplace is a very important topic. In fact, there could be a separate, like a module that you can create on this topic. This is such an important topic, assertive communication in workplace. Then obviously there are active listening skills, building confidence, overcoming anxiety. All of these things are there, right? So what you can do is, Hmm. now let us do one more thing. ठीक है, अभी तो हमने ये जैसे ये टॉपिक्स निकाले हैं. Now we will Hmm. go deeper, और इसमें से भी हम लोग क्वेश्चंस निकालेंगे. Okay, so Deeper matlab? Deeper would mean what? I'll tell you, one second. So now what I'll do is, तो जैसे हम assertive communication में हैं, Hmm. right? So now what I'll do is, अब उसमें जैसे assertive communication में 10 top questions क्या पूछे जाते हैं. Okay. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने बोला है कि आप यू आर अ कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग एक्सपर्ट हो. ठीक है, तो असर्टिव कम्युनिकेशन के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट आर द 10 क्वेश्चंस दैट पीपल आर आस्किंग. एक्सपर्ट फॉर digital, not digital coaches, for working women, okay. Share top 10 questions on, now I'll type is assertive communication. तो क्या होगा ना, हर एक टॉपिक के इन डेप्थ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. यू डोंट हैव टू गो टू गूगल ये वो. बट आई विल स्टिल एनकरेज कि आप जो टॉप क्रिएटर्स हैं उनसे भी कंटेंट निकालिए. ये तो एआई दे ही रहा है, इट इज गुड कंटेंट, बट व्हाट दे आर डूइंग, इट इज अ वैलिडेटेड काइंड ऑफ कंटेंट. ठीक है, Hmm. so please go deep into this topic of assertive communication in workplace and share specific and relevant questions. Dear ChatGPT, don't give the subtext under the questions. Only share top 10 questions in the form of bullets. Okay. So हमने ये लिख दिया. Cool. तो इसने क्या करा? How can I balance assertiveness with empathy? Now this is a very interesting question. आपको भी बड़ा मजा आएगा ये आंसर करने में. Hmm. राइट, Yeah. दिस इज ये लोग होता हुआ यार, मैं असर्टिव होता हूँ तो लोग सोचते हैं मैं एरोगेंट हूँ. बहुत एम्पैथेटिक हो जाता है तो रसगुल्ले की तरह खा जाते हैं, समझ नहीं आता कर. Hmm. सो हाउ डू यू बैलेंस दिस, राइट? व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज कैन आई यूज टू हैंडल इंटरप्शंस ड्यूरिंग मीटिंग्स. अब मान लो कोई बार Hmm. बार आपको इंटरप्ट कर रहा है, हाउ डू यू हैंडल दैट इन अ वर्क प्लेस. 10 लोग बैठे हैं, राइट? यू आर द बॉस और यू वांट टू पुट अ पॉइंट अक्रॉस, राइट? हाउ कैन आई assertively express my opinions without coming as aggressive. See, पहला क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन में एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि क्योंकि ना काफी बार असर्टिवनेस, आई हैव आल्सो सीन दिस, कि जब बहुत असर्टिव होते हैं ना, कई बार इट गोज इन अ नेगेटिव डायरेक्शन आल्सो. सो आई थिंक ये नुआंस समझना और उसे डीपली समझना बहुत जरूरी है. सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लिटिल डिफरेंट देन द दिस. Good one. एक बात का ही एक अलग वेरिएशन है. Hmm. What are effective ways to set boundaries with colleagues and supervisor? Another important question. कि यार अगर आपको कोई काम देता जा रहा है, One how do you second, say? my husband is calling. I have to take Okay, it. okay. Share was कि आप एक के ना डीप में जा रही हो. इट इज नॉट लाइक कि अब बहुत सारे लोग असर्टिव कम्युनिकेशन करते हैं, बट इसका भी जो डेप्थ है ना, वी आर गोइंग इनटू द डेप्थ एंड दैट इज व्हाट विल. हाउ कैन आई प्रैक्टिस असर्टिव बॉडी लैंग्वेज? अनदर न्यू न्यूआंस, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि असर्टिव बॉडी लैंग्वेज क्या होता है. ये जो स्टूप पोस्चर्स होते हैं ये सबमिसिवनेस दिखाते हैं, राइट? व्हेन यू स्ट्रेट बैक, ये सारी चीजें. सो दिस इज अ लिटिल असर्टिव, राइट? Hmm. What techniques can I use to handle criticism assertively? Hmm. Now this is another question, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सो अगर आप ये 10 क्वेश्चंस भी अच्छे से आप आंसर कर दो, यू हैव लाइक अ शॉर्ट मिनी कोर्स ऑन असर्टिव कम्युनिकेशन दैट Yeah, that I'm saying. you can later sell it off as like maybe किसी को मान लो
जानना है आपके बारे में, and just they want to get a flair of what you're doing. Before that, maybe you can do this. You can even give this course for free also. See, Because I was thinking the same thing कि this is one very very good idea. एक मैंने लाइन कहीं पढ़ी थी कि पता नहीं सुनी थी कि if you think this is valuable, give it for free. मतलब आप फ्री में क्या दे रहे हो वो भी डिटरमिन करता है कि आपके पास लोग आए लौट के। वो फ्री चीज ही इतनी वैल्यूएबल होनी चाहिए absolutely, if कि your free stuff is better than other people's paid stuff, people will come to you. राइट। आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट कि ये तो ऐसे ही दे देने चाहिए बिकॉज दीज आर सच common problems which I have seen in my work life in 20 years of career in newspapers, in public relations, in TV journalism. People, especially women, face so much of this. कहीं कहीं कोई एक आदमी भी होता है जो थोड़ा दब्बू होता है जिसका बॉडी लैंग्वेज आपको बता देगा कि कोई भी somebody can just walk over that person. But And tell यहाँ पर 9th क्वेश्चन देखिए, how interesting of a question this is, and especially for you. How can I improve my assertive communication in a male dominant environment? ये तो आपके टारगेट मार्केट के लिए बिल्कुल बेस्ट, हाँ हाँ because here people are coming. एक हम्म विमेन आ रही है जो कि 10 लोग उसकी टीम में सारे मेल हैं, हम्म तो वो असर्टिव कैसे रहे, राइट? अपना कम्युनिकेशन असर्टिव कैसे रखे, राइट? बैरियर्स क्या होते हैं? सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू कैन डू, राइट? हम्म तो व्हाट आई डू इज, मैं आपको इसको किस तरीके से शेयर करूं? शैल आई ये शेयर दिस प्रॉम्प्ट आप मेरे को, हाँ प्रॉम्प्ट आप मेरे को व्हाट्सएप पे दे दो, और अगर ये शीट पे सारा पेस्ट करके आप मुझे दे सकते हो तो वैसे दे दो। शीट? तो मैं आपको डाउनलोड करके भी दे सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुकिए। नहीं नहीं, जो जो आपने चैट जीपीटी का किया, इतनी मेहनत क्यों करोगे? आप उसको एक वर्ड फाइल में कॉपी पेस्ट मारो ना, सीधा हाँ, उठा के। कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, यहाँ पर कंट्रोल है। हाँ हाँ 1 सेकेंड, एक वर्ड फाइल में आपको दे देती हूँ हाँ, डाउनलोड। मेरे को मेल कर दो ये। आपका नाम लिख देती हूँ इसमें, ताकि इट इज ऑल्सो। सो ये क्या है ना, कि नाउ दिस विल मेक यू स्टैंड आउट। अब मान लो कोई विमेन है, असर्टिव नहीं है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट तो इज आप उसको देन यू कैन से कि यार मैं तो तुम्हें पूरी कोचिंग दे सकती हूँ, डू यू वांट टू कम इनसाइड? आई कैन ट्रेन यू इन लाइक 3 months टू गो फ्रॉम हियर टू हियर। बट अभी जो जैसे हमने बात की कि दिस शुड बी अ फ्री थिंग, सो शुड दिस बी अ, शुड वी हाँ मेक यार, दिस अ टोटली, मैं तो वेबिनार? अभी भी कितना सारा चीजें फ्री में दे देती हूँ। टोटली यू कैन डू इट फॉर फ्री, बिकॉज फ्री में, मान लो मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर करने। हाँ 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 हाँ, आप दैट आई टॉप 5 क्वेश्चंस, मान लो 5 भी क्वेश्चंस आंसर करते हो, उसका छोटा सा एक कोर्स बनाते हो, इट्स लाइक अ मिनी कोर्स। नो। तो इसको हमको क्या करना चाहिए? एक वेबिनार अनाउंस करना चाहिए अराउंड दिस? अभी तो आई थिंक आई विल से जस्ट क्रिएट कंटेंट पीसेस। आप कंटेंट पीसेस बना के रखिए, धीरे धीरे आई विल टेल यू कि आपको लोगों को कैसे नर्चर करना है, वो कम्युनिटी बिल्डिंग हम आगे सीखेंगे। नहीं फर्स्ट बट ऑफ अगर अगर जैसे इसकी बात हम अभी फ्री की बात कर रहे थे, तो आई थिंक यही, जैसे चलो मान लो कि फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को उठा के वी डू अ स्मॉल वेबिनार सॉर्ट ऑफ थिंग। कंटेंट पीसेस तो तो एक हम चीज हो लोग, गई। या कंटेंट। आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे ना, वी हम्म विल डू सम शॉर्ट ट्रेनिंग्स फॉर हम्म नर्चरिंग एंड ऑल। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं कि हर बार दो दो या तीन तीन क्वेश्चंस आप उठा के यू कैन आंसर देम, राइट? हम्म एंड हम्म यू कैन आंसर, एंड आपके ग्रुप में जो जो लोग होंगे ऑब्वियसली वो देखेंगे, चीजें करेंगे, दे विल गेट नर्चर्ड, एंड फ्रॉम देयर यू कैन, once they watch their training you can just ask them how was the training, and take things forward from there. So ये हम आगे बताएंगे, you know we will do some short training हर week, जिस जो कि आपको हेल्प करेगी टू बिल्ड योर credibility even more. Because when see, अभी भी मैं हर हर हफ्ते एक बार जाके आई एम डूइंग वन वेरी वैल्यूबल ट्रेनिंग, बहुत वैल्यूबल सी ट्रेनिंग, कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी क्रैप दे दिया। हम्म। आप अपना कंटेंट बस अपने पास संभाल के रखिए, अभी थोड़ा सा कंटेंट का गेम पहले आप करिए, फिर हम 1-1.5 महीने में क्या करेंगे, वील स्टार्ट गेटिंग अ हैंग ऑफ ट्रेनिंग्स। बिकॉज अगर डे 1 पे आप ट्रेनिंग करने चली भी गई फॉर एग्जाम्पल, एंड देर आर हम्म नॉट इनफ पीपल, तो क्या होगा ना, आपका एफर्ट वेस्ट होगा। सो लेट्स फर्स्ट बिल्ड, क्योंकि हमारे कंटेंट में इंटरेस्टेड होगी, राइट? स्लोली एंड स्टेडिली, एंड वंस देर आर इनफ पीपल जो कि हमें लाइक कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, एंड हम्म they're showing that kind of interest in our work, then we can say, hey, you know what, I'm doing this training on this topic. हम्म Yeah.
So how come join do my we group. figure that set of people? वो आप बोल रहे हो कि वो जो कंटेंट हम हाँ पोस्ट करेंगे उससे आएंगे. हाँ, उससे आएंगे। सबसे पहले तो आप ऑब्वियसली जो प्रोफाइल पे आप लोग कॉल कर रही है ना, तो हम्म. सबसे पहले तो वो कंटेंट देख के आएंगे। तो अब मान लीजिए आपने एक कोई छोटा सा पोस्ट लिखा, उसमें आपने एक इसका आंसर दे दिया, चाहे रिटर्न में चाहे वीडियो में, कैसे भी, राइट। फिर दूसरे में, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मे बी टेक 3 or 5 questions एट वन गो, एंड यू कैन डू इट इन अ मोर इन डेप्थ फॉर्म थ्रू अ ट्रेनिंग, थ्रू अ 30 minute और 60 minute ट्रेनिंग। सो उसमें क्या होगा, यू कैन गिव मोर एग्जाम्पल्स, यू कैन डाइव इन डीप, बिकॉज So कंटेंट। when you are saying training, what is it? Training मतलब ऐसे ऑनलाइन जैसे what we are doing right now कि एक या रिकॉर्ड करके ट्रेनिंग, बस. नहीं नहीं, ट्रेनिंग मैं आपको हमेशा बोलूंगी लाइव करना। इट शुड नॉट बी, सी, अब जैसे मेरी ट्रेनिंग्स में क्या होता है, हर बार बहुत सारे लोग नहीं आते, बिकॉज लोग भी, कभी कोई फेस्टिवल चल रहा है, कभी कोई काम चल रहा है, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन देयर लाइफ, बट आई एम द वन हु इज गोइंग एवरी सिंगल वीक। तो क्या होता है ना, दे समबडी, भले एक बंदा ही आएगा, बट दैट वन पर्सन ओनली विल कन्वर्ट, बिकॉज उसको वो एक ट्रेनिंग से इतनी वैल्यू मिल गई, he'd be like, "Okay, यार, I want to be with this person." Like yesterday, one office person, he was sitting inside his office. He attended my entire training live. And then he also personally texted that, "Hey, Taiba, you know what? I have to rush. My office times are getting over. I will get in touch with you." So he texted me. Right? So trainings हमेशा आप लाइव करिए, क्योंकि मान लीजिए उसमें 4, 5, 2, जितने भी लोग आ रहे हैं, कम लोग भी आ रहे हैं, बट दे आर एबल टू एक्सपीरियंस यू वन ऑन वन। तो उनकी जो ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, वो दैट वुड बी ऑन अनदर लेवल। सी, रिकॉर्डेड कोर्स तो बहुत सारे करते हैं, एंड देन दैट इंटरेक्शंस आल्सो हैपेंस। लाइक लास्ट ट्रेनिंग जो मैंने करी थी, मैंने आधे घंटे की ट्रेनिंग करी थी। पीपल हैड सो मेनी क्वेश्चंस, दे स्टार्टेड आस्किंग, एंड देन वो 1 घंटे की हो गई। नाउ आई हैव अ रिकॉर्डेड 1 hour ऑफ कोर्स विच इज प्योर वैल्यू, बिकॉज उसमें लोगों के क्वेश्चंस हैं, प्लस माई मैटर इज देयर, एंड यू नो पीपल आर फीलिंग कि हाँ यार, शी इज अ लेजिट एक्सपर्ट। सो ऐसा नहीं होता, जब मैंने स्टार्ट करा था इतने ही लोग आते थे। समटाइम्स देर आर 20 people ऑल्सो, अचानक से हम्म. 25, 25, 50 लोग भी हो जाते हैं। कभी कभी होता है कि 5 लोग ही होते हैं, कभी कभी होता है एक बंदा ही आता है। बट बिकॉज आई एम डूइंग, एंड पीपल हैव दैट इन माइंड कि मैं ये 7 बजे थर्सडे को हमेशा करती है। सो बिकॉज ऑफ दैट, यू नो दैट इन देयर माइंड दे हैव दैट क्लैरिटी कि हाँ, मुझे यहाँ पर करना है, एंड अगर कोई प्रॉब्लम है, आई कैन गो एंड आस्क। एंड दिस इज बेसिकली अ वे ऑफ एंगेजिंग योर ऑडियंस। बेसिकली हम क्या चाहते हैं, हमारा क्लाइंट हमसे बात करे, चाहे वो हमारे किसी मीटअप के थ्रू हो या किसी भी चीज के थ्रू हो, इट शुड बी जस्ट एन इंटरेक्शन, राइट। समवेयर अवर रिलेशनशिप विद शुड स्टार्ट विद दैट क्लाइंट। हाउ दैट विल स्टार्ट, इट विल स्टार्ट इन मल्टीपल वेज, बट द फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू फोकस इज कंटेंट। आप ये जैसे आपने निकाले क्वेश्चंस, ऐसे करके आप सारे टॉपिक्स पे एक एक करके क्वेश्चंस निकाल हम्म. सकते हैं। along with that, I would recommend आप अपनी स्टोरीज भी रिकॉर्ड करिए, you know, your own experiences with your own clients, right, with the people that you have worked, your past experiences जहां पर आपने देखा कि बहुत लोग submissive थे, whatever those things were, try to record them, because जितना आपका वो element आएगा ना, people will see the authority that you have. टॉप क्रिएटर्स जैसे मैंने बताया, नौशीन, गो टू हर प्रोफाइल, टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम हर, रिक्रिएट थिंग्स इन योर ओन स्टाइल। तो आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा ना कि अगले 6 महीना, साल भर का भी कंटेंट आप बना के रख सकती हैं। कंटेंट वाइज यू आर नेवर थिंकिंग कि आज आज क्या बनाऊं। That is a good exercise to invest time in. मैं वीकेंड पे आई ट्राई एंड क्रिएट अ लिस्ट सो दैट मंडे को जब हम बैठेंगे तो वी कैन थ्रैश दैट लिस्ट इन सम वे टू सी कि कौन पहले करना चाहिए, मतलब किसी तरह से उसको ऑर्डर करेंगे एंड देन मे बी दिस वीक फ्रॉम मंडे टू I think सैटरडे you आई should कैन. start with assertive communication. This is my personal favorite because workspace में एक जो main problem होती है वो assertive communication की होती है. Actually, this is what something जो मैंने अपने 2-3 colleagues से सुना है, and my own husband used to say कि यार assertiveness के बिना कुछ नहीं हो सकता. In fact, he says to me, तुम कोई course क्यों नहीं बनाते? But now you have that course, so you know you can share it with people and it can be of immense value. लिंक्डइन पे बहुत चलेगा ये टॉपिक, मैं बता रही हूँ आपको। लिंक्डइन को वर्किंग पसंद है। लिंक्डइन वांट्स दैट वर्किंग पीपल शुड एंगेज इन सच टाइप ऑफ कंटेंट। सो लिंक्डइन आपका कंटेंट बहुत बूस्ट करेगा अगर आप ऑफिस वर्किंग, फॉर वर्किंग लेडीज, सारे टैग्स डालेंगी, एंड यू नो you'll put it के आई एम जस्ट शेयरिंग these tips, वीडियोस भी, बिकॉज लिंक्डइन का मेन फंडा क्या है, ऑफिस गोइंग लोगों को बेनिफिट मिले, दे शुड स्टे एंगेज, एंड यू आर डूइंग दैट फॉर देम, राइट। सो
आप बनाएंगी तो लिंक्डइन पे बहुत चलेगा ये फंडा। अब मैं क्या करूंगी ना, व्हाट आई एम गोइंग टू हम्म डू इज आई एम गोइंग टू डाउनलोड द कंटेंट बैंक फॉर यू। ठीक है, हम्म सारी चीजें मैंने वो कर दी हैं, इसके जो प्रॉम्प्ट्स हैं, प्रॉम्प्ट्स आर आल्सो देयर। ठीक है, हम्म दोनों तरह के जो प्रॉम्प्ट्स हमने यूज करे थे वो भी हैं, क्वेश्चंस भी है। अब आपका काम है कि इसको पूरा शीट को बनाना। हम्म ठीक है, आफ्टर क्रिएटिंग द शीट वी विल स्टार्ट विद द प्रॉपर राइटिंग पार्ट, कि राइटिंग इन द सेंस की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिजनेस, या या राइट। तो उसको मैं अभी डाउनलोड करके आपको दे देती हूँ। सो सी व्हाट माय, मैं आपके लिए क्या चाहती हूँ, आई हाँ वांट कि आप 7 दिन पोस्टिंग करें। नाउ यू विल से इट इज वियर्ड कि यार 7 दिन पोस्टिंग करो, इट्स टू मच। आई एम डूइंग 7 days पोस्टिंग इवन नाउ। You know why? Because I don't want to get off the heads of people. And all the most successful people, Alex Sarmozy, you take Ali Abdal, you take this person, Iman Ghazi, every big shot person is putting content every single day. हम्म And people who have made it, feel like आप सोचो ना, Russell Brunson, he has created billions of dollars in revenue through his coaching business. Even he is putting content daily. So now imagine you and I, we are हम्म just on that journey ना, where we are just getting on with things. So आई मैं थिंक आपको रिकमेंड करूंगी 7 दिन करिए, बट हम्म 5 दिन तो नॉन नेगोशिएबल है। मतलब मंडे टू फ्राइडे यू कांट इग्नोर इट, बिकॉज जितना आपका कंटेंट जाएगा उतना ज्यादा क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, उतना ज्यादा कनेक्शन बनेगा। मे बी सम पीपल स्टार्ट जस्ट आस्किंग, okay, can you help me? Do you have a program? You can start conversations from there also. I think making a content in bulk is going to help because every day ऐसे होता है कि जैसे मैं सोचती हूँ कि अच्छा ठीक है अभी करती हूँ, फिर वो अभी कुछ हो गया, अभी कुछ हो गया, बच्चों का कुछ हो गया, घर का कुछ हो गया, आज मेड नहीं आई है, वो उस सारे तमाशे में निकल जाता। सो मेकिंग इट क्रिएटिंग मतलब एक तो फर्स्ट आई थिंक द क्लैरिटी, जैसे अब ये एक हमने डिसाइड कर लिया कि असर्टिव कम्युनिकेशन पे हमको आने वाले हफ्ते के लिए 5 वीडियोस या 2 पोस्ट जो भी जिस भी रेशो में करना है, तो फिर अब वो क्या होने चाहिए उस पे और उसका क्या लिखना है, दैट शुड बी वन पैटर्न। फिर वो ये करके और इसको स्केड्यूल करके जितना सभी हो पाता है दैट ये विल। अगले वेडनेसडे के पोस्ट अभी तक शेड्यूल्ड है, अगले वेडनेसडे का। ये वीक का तो पूरा पोस्ट शेड्यूल्ड था ही, अगले वीक की भी 3 दिन के पोस्ट शेड्यूल्ड है। वही ना, वही करने से ही बनेगी कंसिस्टेंसी, नहीं तो वो फिर आज ये हो गया आज वो हो गया के चक्कर में कुछ ना कुछ छूट जाएगा। दैट इज वाई यहाँ पर हर चीज के सिस्टम्स आपको दे रही हूँ। और अभी जब हम राइटिंग की क्लास में आएंगे ना, आई विल टेल यू some things। मैं आपका content writing की journey, you'll be like amazed when you go to the actual writing class how easy it is. Yes, हम्म we will take your ideas, you will take your content, but then we will spice it up with chat gpt। हम उसको इस तरीके से लिखेंगे that it is so, मतलब जो मार्केट चाहती है ना, हम्म मार्केट wants very short simple clear stuff। they हम्म don't want a lot of big stuff, बहुत लंबे लंबे लेक्चर, बहुत सारा लंबा लंबा कंटेंट नहीं चाहिए। हम्म। उसको उस फॉर्मेट में कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी आने वाले टाइम में, राइट। बिकॉज अभी तो हमने राइटिंग का स्टार्ट भी नहीं करा है। राइटिंग नहीं हम, तो हैंग ऑन तो व्हाई डोंट वी डू दिस कि क्योंकि हम ये सोच ही रहे हैं जैसे ये असर्टिव कम्युनिकेशन वाला, व्हाई डोंट वी जस्ट पिक दिस अप एज अ प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ थिंग एंड डू दिस। इसमें इसका ही इसके अराउंड जो कुछ होना चाहिए जैसे राइटिंग, पोस्टिंग, वो कमेंट। सारा कुछ होगा। आप अभी स्टार्ट करिए, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। मैं आपको तो अगले हफ्ते से, स्टार्ट करने के लिए ही तो मैं बोल रही हूँ कि स्टार्ट करना इज वो ओके जो बट सेशन है ना थोड़े डीप है मतलब। तो स्टार्ट करिए जब आप बोलते हो तो व्हाट डू यू वांट मी टू डू। आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट एज ऑफ नाउ। जस्ट आप पहले ये कंटेंट बैंक कंप्लीट करिए। योर टास्क फॉर द नेक्स्ट वीक इज टू कंप्लीट दैट एंटायर कंटेंट बैंक। ऑन 10 सब थीम्स। हाँ, उसके थीम्स जो हैं चैट जीपीटी के थ्रू जो निकाले हैं वो, और हम्म फिर बाकी क्रिएटर्स से भी जितने आप आइडियाज ले सकते हैं वो भी लिख लीजिए, हम्म राइट। या हम्म फिर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट टेक वन assertive communication के 10 questions and then take from the top creators। हाँ दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग बिकॉज दैट मेक्स मोर सेंस टू मी दैट अगर हमको ये करना ही है और हमारे को इसमें प्रैक्टिकल लर्निंग करनी है तो व्हाई नॉट इंस्टेड दैट आई स्पेंड एनर्जी क्रिएटिंग अ कंटेंट पीस अराउंड दिस एंड देन वी डू नो राइटिंग नो, एंड वो जो है ना वो बहुत डीप है एक्चुअली। दैट इज नॉट सो सरफेस लेवल।
वो जो Hmm. आगे के सेशंस हैं, I can even do it now, but then that depth will not come, that observation will not come. I can do the entire content thing कि हमारे जो 3 सेशंस है कंटेंट के, वो एक बार में एक शॉट में मैं कर सकती हूँ. बट आई वांट यू टू गो स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज अभी आप कंटेंट बैंक बनाएंगे, यू विल फाइंड वेयर it will take some time, getting all those things, doing your research. Once that is over, then you start writing it, right? So writing के मैं आपको patterns बताऊंगी, वो सब होगा. बट आई रियली वांट कि अभी आप you just get started with your, अभी जो भी टॉपिक्स है ना, यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग इन योर ओन स्टाइल, इन रिकॉर्डिंग, आपको वीडियो बनानी है, रिटन लिखना है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, यू Hmm. जस्ट स्टार्ट डूइंग इट. जब पैटर्न्स आएंगे, यू विल स्टार्ट क्लिकिंग कि अरे मैं ऐसे लिख रही थी, ऐसा होता था. यू विल स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस. Fair दैट इज enough. व्हाई आई वांट यू कि अभी आप अभी से स्टार्ट कर दो. यू डोंट वेट कि जब हुक का लेसन आएगा तब मैं परफेक्ट हुक लिखूंगी, फिर Hmm. इसको स्ट्रक्चर कैसे करना है, फिर उसको फॉर्मेट कैसे करना है. आई डोंट वांट यू टू वेट फॉर सो लॉन्ग. वो भी हम धीरे धीरे करेंगे. दैट विल हेल्प यू सी कि मैंने अभी तक क्या करा एंड व्हाट इज द बेटर वे. Fair enough. ऑलराइट, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि जस्ट कंप्लीट दिस कंटेंट बैंक. इट विल टेक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर रिसर्च एंड ऑल, एंड देन विल मीट नेक्स्ट वीक. हाँ. Done. Let's meet next week and talk about it. So now you have got absolute clarity. आज का क्लास, how was, did it help you just open up your mind to the entire content system, जो बहुत सारा content का दिमाग में चलता है ना कि यार ये करूँ वो करूँ. यार मैं करूंगी तो फिर मैं इस सवाल का जवाब दे सकती हूँ. सेशन वाइज, ऑल इन ऑल, I can't evaluate every session. You ask me this at the end of every session. Every session is, of course, there are something new to learn. Um, but like अभी मेरे को इस पे वो जैसे कट च्यूइंग करती है ना काउ, बैठ के थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आज हमने ये डिस्कस किया. दैट इज व्हाई आई टेक नोट्स आल्सो. आई नो यू विल सेंड मी एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड एंड एवरीथिंग. बट जो मुझे पर्सनली लगते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आई ऑलवेज मेक अ नोट ऑफ इट. सो अभी जब मैं दिन के दौरान, एंड इट्स अ वेरी सबकॉन्शियस प्रोसेस, इट हैपेंस, देन कि मैंने क्या वैल्यू पर्टिकुलरली, इफ यू वांट मी टू आंसर दैट, डिराइव की फ्रॉम अ सर्टेन सेशन, दैट हैपेंस, देन इट्स. बट अभी मैं बोल सकती हूँ कि हाँ बहुत अच्छा हैव था, यू गॉट बहुत. अ मेंटल क्लैरिटी? एक रोड मैप होता है ना कि हाँ मुझे यहाँ से यहाँ ऐसे जाना है. दिस इज माय So थॉट. Abhi, I think the most valuable thing that you've said to me in this session about work is, जैसे अभी I was insisting on doing the copy. So you said that if we do it at a later stage, you'll be able to see कि मैं ये कर रही थी, but this is the way to do it. So that makes sense because okay, let's I या can do that. एक टाइम तक आप पहले दूसरों से इंस्पिरेशन लेते हो, एंड देन यू डेवलप योर ओन स्टाइल एंड वॉइस एंड एवरीथिंग. Hmm, hmm, कम्स विद hmm, टाइम. hmm, सो hmm. आई डोंट वांट कि कोई भी ओवरवेलम हो इस प्रोसेस में. इट शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल. Yeah, 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 absolutely, I understand.